Good morning everyone. Namaste दोस्तों. Today we are going to study the Euclidean algorithm. Already हमने डिवीजन algorithm परफॉर्म किया है, लेकिन जब नंबर्स बड़े हो और उनका हमको जीसीडी फाइंड करना हो, तो बिगर नंबर्स के लिए यदि हम डिवीजन algorithm को ही रिपीटेड अप्लाई करते जाएं, तो we can find greatest common divisor of bigger numbers. Before that, we have to see one result. It is stated as lemma. Smaller results के लिए terminology होती है lemma, preposition, इस तरह की. They are also results. It says if a and b are integers, b not equal to 0, a equal to qb plus r, then GCD of AB is same as GCD of BR. ये सब स्टैंडर्ड मीनिंग है. Q is quotient, R is remainder. तो given two numbers A और B का GCD is same as GCD of B, मतलब डिवाइजर एंड रिमाइंडर. नंबर रिड्यूस हो गए, तो इसको पहले प्रूव करते हैं और इसका यूज करते हुए फिर हम डिवीजन एल्गोरिथम के स्टेप्स देखेंगे. प्रूफ. given that a and b are integers and b is not equal to 0, also a is equal to qb plus r, where q and r are also integers with standard meanings. q is quotient, r is remainder, and 0 is less than or equal to r less than b. Now let GCD of AB is equal to D and GCD of, ठीक है, पहले इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं. GCD of AB को पहले इंटरप्रेट कर लेते हैं, फिर बाद में GCD of BR की बात करते हैं. तो दिस इम्प्लाई D divides A, D divides B by definition of GCD. By definition, and this implies D divides A minus QB by theorem. If D divides A and D divides B, then D divides linear combination of A and B. तो linear combination हम इस पैटर्न में ले लें, A minus QB. That is D divides R. A minus QB is R. तो हमारे पास में D divides B है and D divides R है. D divides B and D divides R. Therefore, D is common divisor of B and R. That is, D is common divisor of B and R. इसी के साथ में GCD of AB को D है and GCD of BR को CD बोल देते हैं, नहीं कह देते, दोनों का नोटेशन दे दिए. GCD of AB is equal to D and GCD of BR equal to C. So D is common divisor of B and R. Therefore, D must be less than or equal to greatest common divisor of B and R. Must be less than or equal to GCD of B and R. And GCD of B and R को हमने C से डिनोट किया है. That is, B is less than or equal to C. अभी ये पार्ट हो गया. अब जरा इसको इंटरप्रेट करते हैं. GCD of B and R is C. इसको इंटरप्रेट करते हैं. Again, GCD of B and R is equal to C implies C divides B and C divides R.
C divides B and C divides R. Therefore, C divides लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B एंड R. अब वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन, वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा लेते हैं QB plus R. By this is by definition and this is by theorem. So this is QB plus R is nothing but A. So that is C divides A by 1. ये कहां से है? A minus square by 1. तो C divides B है, C divides A है. Therefore, C is common divisor of A and B. अब कोई भी कॉमन डिवाइजर यदि हो तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से स्मॉलर होगा. तो therefore, C is less than or equal to greatest common divisor of A and B. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A and B को हमने D से डिनोट किया है. तो दैट इज C is less than or equal to B. इसको नंबर दे देते B. From A and B we get C is equal to D or D equal to C or D equal to C. This implies D मतलब GCD of AB is equal to C मतलब GCD of BR. Hence prove the result. Let us see one illustration for this result. We can write 34 as 6 into 5 plus 4. अब यहाँ पर फर्स्ट केस ऐसा लेते हैं A equal to 34 और B equal to say 5 and R equal to 4. B ये ले लेंगे. So what is GCD of AB? That is GCD of 34 and 5. अब 5 प्राइम है, 34 इवन नंबर है, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो GCD is 1. What about GCD of B and R? B is 5, GCD of 5 and R is 4. एक प्राइम है और ये इवन नंबर है, कुछ कॉमन अदर देन 1 है नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1. तो बोथ आर इक्वल. GCD of AB is equal to GCD of BR. ओके. नाउ सेम एग्जांपल में हम B को 6 ले सकते हैं और 5 को क्वोशंट मान सकते हैं. तो सेकंड इसी के लिए देख लेते हैं. इफ A is equal to 34 and B is equal to now say 6, we can divide 34 by 6. In that case quotient will be 5 and remainder will be 4. Remainder is 4. अब देखें GCD of A and B is GCD of 34 and 6. 34 और 6 टू कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा 3 से 34 में डिवीजन नहीं होगा, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 2 इस केस में. और GCD ऑफ B and R is GCD of B is 6, R is 4. 6 और 4 का कॉमन डिवाइजर 1 2, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 ही होगा. तो देयरफॉर GCD of A and B is same as GCD of B and R. मतलब दोनों केस में रिजल्ट फॉलो होते दिख रहा है. Now, when we want to find the greatest common divisor of large integers, then repeated application of division algorithm is referred as Euclidean algorithm due to mathematician Euclid. Now the process is as follows. To find greatest common divisor of say A and B. Now greatest common divisor of A and minus B कहो या minus A and B कहो या minus A minus B कहो, all are same as greatest common divisor of A and B. So this is the result. Greatest common divisor of mod A mod B is same as greatest common divisor of A and B.
तो वी कैन assume that a is greater than or equal to b and both are positive. Equal to का एकदम ट्रिवियल केस होगा when a and b are equal, greatest common divisor is equal to the integer itself and the greatest common divisor of a will be a. तो बेसिकली बात तब हो रही है जब a greater than b हो. So first we apply division algorithm, that means we divide a by b to get integers q1 and r1, quotient and remainder. a is equal to q1b plus r1. सबके स्टैंडर्ड मीनिंग है q1 is quotient, r1 is remainder, then condition will be r1 is greater than or equal to 0 and less than divisor b. Say equation number 1. Now if r1 is equal to 0, तो 1 imply a is equal to q1b बचा. जैसे a equal to q1b बचा मतलब b divides a हो गया. b divides a. अब b divide a कर रहा तो greatest common divisor of a and b is the b only. मतलब हमको मिल गया greatest common divisor of a and b. Now we consider the case when r1 is not equal to 0. So next step, say step 2. If r1 is not equal to 0, then we divide b by r1 using division algorithm to get quotient and remainder. Say quotient as q2 and remainder as r2, such that b को divide कर रहे हैं r1 से, तो relation will be b is equal to q2 r1 plus r2, where r2 satisfy the condition 0 less than or equal to r2 less than r1. अब फिर से देखो, if r2 is equal to 0, तो ये पार्ट 0 हो गया, b equal to q2 r1 बचेगा. If r2 equal to 0, then 2 reduces to b equal to q2 into r1. मतलब r1 divides b. अब r1 divides b कर रहा हो तो greatest common divisor of both element will be the r1 only. r1 divides b है, greatest common divisor will be the r1. इसके पहले, ये प्रोसेस के पहले लेमा प्रूफ क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b इज सेम एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर. तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b, हमारा पर्पस यही था a b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना. तो इस केस में हमने रिमाइंडर r1 से शुरू किया. तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ b एंड r1, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ b एंड r1 इज r1. तो दैट मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b इज r1. ये तो तब बात हो रही है जब r2 0 है. तो if r2 is not equal to 0, फिर से हम डिवीजन एल्गोरिथम कंटिन्यू करते चले जाएंगे. से स्टेप 3, if r2 is not equal to 0, then we divide r1 by r2 using division algorithm to produce quotient, say q3, remainder r3, such that r1 is equal to q3 r2 plus r3, where r3 satisfying the condition greater than or equal to 0 and less than r2. अब ये प्रोसेस कंटिन्यू करते चले जाएंगे. कब तक? जब तक के जीरो रिमाइंडर नहीं मिल जाता. देखो r3 यदि 0 हो जाए, r3 0 हो जाए तो वी स्टॉप. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या मिलेगा? इसके पहले वाला नॉन जीरो रिमाइंडर. ठीक है, वो हम कंक्लूजन में बात कर लेंगे. इफ r3 is equal to 0, वी स्टॉप, अदरवाइज कंटिन्यू एज बिफोर. अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब तक के चलते रहेंगे? जब तक के जीरो रिमाइंडर नहीं मिल जाता. This division process continues until some zero remainder appears. कहाँ मिलेगा? तो ये जो पैटर्न है, इक्वेशंस का पैटर्न है, जब हम इसको सब एक साथ लिखेंगे तो समझ में आएगा. Say at n+1 step, where rn-1 is divided by rn. और ये प्रोसेस टर्मिनेट होगी, स्टॉप होगी, खत्म होगी. क्यों? Because zero remainder occurs sooner or later because of this decreasing sequence. B is ग्रेटर देन r1 इज ग्रेटर देन, जो रिमाइंडर आते जा रहे हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, और ऑल रिमाइंडर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो कहीं ना कहीं जाकर जब इक्वल बन जाएगा तो ये जो प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाएंगे. और ये जो प्रोसेस है कितने स्टेप्स ले सकेंगे? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम b जितना इंटीजर होगा उतने स्टेप में. यदि एक नंबर भी कम होते जा रहा हो रिमाइंडर में, तो मैक्सिमम स्टेप्स विल बी सेम एज द इंटीजर b, कैन नॉट कंटेन मोर देन b integers. अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पैटर्न में लिख लेते हैं. द रिजल्ट इज द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन लिखिए एज इट इज, सेकंड भी अपनी जगह एज इट इज लिखिए. थर्ड इक्वेशन को नंबर दिया था कहीं पर, थर्ड इक्वेशन को नंबर ये है. थर्ड इक्वेशन की r1 = q3 r2 plus r3. अब यहां पर लेस देन साइन है केवल, 0 इज लेस देन r1.
क्योंकि यदि इक्वल टू होता तो वहीं हम रुक जाते थे, वहीं हमको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिल जाता था। जब वो जीरो नहीं है तब हम आगे जा रहे हैं। R2 जीरो हो जाता तो वहीं स्टॉप कर देते थे, जब जीरो नहीं है तब आगे हम जा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जीरो इज लेस देन R3, ओके। रिमाइंडर जैसे जीरो आ जाएगा तो वहां प्रोसेस स्टॉप हो गई, जब जीरो नहीं है तब हम आगे डिवाइड कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। Here remainder R4 satisfying the condition greater than 0 less than R3। अब देखो इनमें रिलेशन क्या दिख रहा है, R4 और Q4 ये दोनों सेम है, इंडेक्स 4 4 सेम है, R3 इससे एक कम है और यहां पर इनसे दो नंबर कम है, ठीक है। तो इन जनरल Rn और Qn के साथ में क्या होगा, Rn यदि रिमाइंडर है, Qn यदि क्वोशंट है, तो जो डिवाइजर होगा वो Rn-1 है, इससे एक कम, और किसको डिवाइड कर रहे हैं, इससे दो नंबर कम, Rn-2 को, ठीक है। इस तरह से समझना उसको आसान है। तो Rn-2 is equal to Qn Rn-1 plus Rn, where Rn satisfying the condition 0 से greater और Rn-1 से smaller। और उसके बाद वाली जो स्टेप है, अब फर्स्ट स्टेप में Q1 और R1 मिले थे, सेकंड स्टेप में Q2 और R2 मिले थे। इसका मतलब ये जब Qn और Rn की बात करें तो ये हमारी nth स्टेप हो गई, दिस इज nth स्टेप। तो इसके बाद वाली n+1 स्टेप, n+1 स्टेप, where quotient is Qn+1 and remainder Rn+1 is 0, तब when Rn-1 is divided by Rn। तो ये पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया। इस प्रोसेस से जो हमको लास्ट रिमाइंडर मिल रहा है, नॉन जीरो रिमाइंडर Rn इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A and B। अब जैसे ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाए Rn, तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A and B। सो यूजिंग बैकवर्ड ऑर्डर इक्वेशंस को बैकवर्ड ऑर्डर में यदि हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं एक्सप्लेन करते हैं, यूजिंग above system of equations in backward order we can express Rn as linear combination of A and B। means Rn जो कि GCD of A and B था is equal to Ax plus By, where x and y are integers। एक एग्जांपल, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ सम बिगर नंबर्स इवैल्यूएट करेंगे और वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस भी करेंगे। Now examples are of this type. Find GCD of 1769 and 2378। larger number है, bigger number है था, using Euclidean algorithm। also find integers x and y satisfying GCD of this two number is equal to linear combination of the numbers। the solution, to find GCD of 1769 2378। तो हम डिवीजन एल्गोरिथम रिपीटेडली अप्लाई करते चले जाते हैं। अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम रिपीटेडली, देखो सबसे पहले 2378 को डिवाइड करना है 1769 से, तो नेचुरली 2000 है, यहाँ 1000 है, तो एक ही बार मैक्सिमम डिवीजन होगा। हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन 1 डिवाइड करें तो 1769 आएगा मैक्सिमम, सब्ट्रैक्ट करें 18 में से 9 गया 8 0, 13 में से 7 गया 6 and this will be 0। 608 will be the 60, 18 में से 9 to the 18, 609 is the remainder। अब ये रिमाइंडर से ये डिवाइजर को डिवाइड करते हैं 1769, ये डिवीजन ऐसा करते हैं परफॉर्म, 600 में है और यहाँ 1700 है, 6 3 जा 18, तो इतना तो डिवीजन नहीं होगा, 2 टाइम्स जा सकता है, 2 टाइम्स 9 to the 18 और 6 to the 12, सब्ट्रैक्शन के बाद we'll get 1 5 5 515 है सेकंड रिमाइंडर।
अभी जीरो रिमाइंडर नहीं आया, जब तक ये जीरो रिमाइंडर नहीं आता तब तक ये कंटिन्यू करते हैं। अब ये रिमाइंडर से इसको डिवाइड करते हैं, 609 को डिवाइड करते हैं, एक ही बार कहते हैं डिवीजन, 551 सब्ट्रैक्शन 8, ये हो गया 5, 58 इज नाउ रिमाइंडर। इससे 551 को डिवाइड करते हैं, 551 मैक्सिमम कितने बार जा सकता है, 5 9 of 45, 5 10 of 50, लेकिन 10 टाइम्स तो 580 हो जाएगा, नंबर बिगर हो जाएगा 551 से, तो 9 टाइम्स ले लेते हैं, 9 8 2 7, 9 45, 45 into 7 52, 522 सब्ट्रैक्शन करने पर इट इज 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, 29। नाउ 29 इज द रिमाइंडर। अब ये 29 से 58 को डिवाइड करते हैं, 58 को डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स चले जाएगा पूरा पूरा, 9 to the 18, 2 to the 4 plus 1 5, रिमाइंडर इज 0। सक्सेसिव डिवीजन कब तक के करते हैं, जब तक के जीरो नहीं मिल गया डिवीजन रिमाइंडर, जीरो रिमाइंडर। अब ये जो पूरे प्रोसेस है, ये प्रोसेस को इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं। Therefore we have the system of equations, we have the system of equations सबसे पहले यहां से शुरू करना, 2 3 7 8 is equal to quotient is 1, divisor was 1769, remainder is 609, number 1। नेक्स्ट अब डिविजन हमारा था 1769, तो दिस 1769 is equal to quotient into divisor plus remainder 2 into 609 plus remainder is 551। नेक्स्ट में 609 को डिवाइड किया 551 से, तो 609 is quotient is 1 into 551 plus remainder is 58, dividend is equal to quotient into divisor plus remainder। next 551 is equal to quotient उस केस में 9 है, 9 into divisor is 58 plus remainder 29, number 4, and last is 58 is equal to 2 into 29 plus 0 is the remainder। So therefore by Euclidean algorithm ये repeated division algorithm perform किया, this is Euclidean algorithm, and by Euclidean algorithm GCD of 1769 and 2378, 1769 2378 is equal to last non-zero remainder is 29, the last non-zero remainder। ये तो हो गया रिमाइंडर जीसीडी आंसर। अभी और भी आगे का काम करना है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इंटीजर्स एक्सप्रेस करना है, तो वो कैसे होगा देखिए, we can write 29 as further to find integers x and y such that 29 is equal to 1769 x plus 2378 y, ऐसे फाइंड करना है। GCD is equal to linear combination of given integers, तो we can write 4 as 4 imply 29 is equal to 29 is equal to, इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो इसको लिखते समय ऐसा लिखते हैं 1 into 551 minus 9 into 58 by 4, this is by 4,
नाउ 4 यूज हो गया। अब हमको ये नंबर्स को बड़े करते जाना है। ये जो नंबर्स है 5, 5, 4 और 58 इनको बड़े नंबर करते करते ओरिजिनल नंबर तक लेके जाना है। तो इक्वेशन 3 में से हम 58 एक्सप्रेस कर सकेंगे एज, तो दिस इज 29 इज इक्वल टू 1 into 5, 5, 1 अपने माइनस 9 into 58 कैन बी रिटन एज, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1 into 609 माइनस माइनस ये 1 into 551 बाय 3 बाय 3 58 को एक्सप्रेस किया। अब इसको पहले सिंपलीफाई करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने पर -9 into -1 यानी 9 हुआ, 551 के साथ 9 कोएफिशिएंट है, यहां पर 1 कोएफिशिएंट है, दोनों का एडिशन हो गया 10 टाइम्स 551 माइनस 9 टाइम्स 609। अब ये रिमाइंडर को एक्सप्रेस करते हैं। 551 कैन बी रिटन एज 1769 minus 2 times 609, so this is 10 times, ये 551 is 1 into 1769 minus 2 times 609 minus 9 times 609 अपनी जगह ये आया by 2, इसको सिंपलीफाई कर ले। 10 times 1769 है, 10 times 1769, ये ब्रैकेट ओपन होकर -20 टाइम्स आया और यहाँ -9 है, तो बन गया -29 टाइम्स 609, -20 -9 -29, 1769 तो आ गया यहाँ पर। अब ये 609 को एक्सप्रेस करते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज this is equal to 10 into 1769 minus 29 into 609 means 1 times 2378 minus 1 times 1769 by 1 by 1। इसको कलेक्ट कर लो, ये 10 times 1769 है, minus 29 into -1 that will be plus 29 plus 29 plus 10 is 39 times 1769 minus 29 times 2378, तो 179 के साथ 1769 के साथ x था और इसके साथ y दिया हुआ था, तो अवर x is 39 and y is -29। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, लिख कर देना। Thus 29 is equal to 1769x plus 2378y, where x is equal to ये 39 and y is equal to -29 are required integers। इस तरह से ये लैंग्वेज के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। These are the homeworks, same language, find GCD of this pair and express GCD as linear combination of the numbers। तो इतने प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा। Now some results। Theorem, if k is positive then GCD of ka kb, कोई कॉमन यदि फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर बाहर GCD of ab। Proof is simple, when k is positive then we know that greatest common divisor is the smallest positive integer which is of the linear combination, which can be expressed in the linear combination of ka and kb। So this is smallest positive integer of the form ka into x plus kb into y, where x and y are integers। अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसमें से k कॉमन लिया जा सकता है, k यदि कॉमन आ जाए तो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ax plus by, which is nothing but GCD of a and b।
So GCD of Ka Kb is equal to K times GCD of Ab when K is positive. Now one corollary is there for any integer which is not equal to 0. Greatest common divisor of Ka and Kb is mod K into GCD of Ab. तो पॉजिटिव के लिए तो ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, वी नो द रिजल्ट फॉर पॉजिटिव के. तो अब हमको केस कंसीडर करना है व्हेन k इज नेगेटिव. अब जब k नेगेटिव का है तो माइनस ऑफ k विल बी पॉजिटिव एंड दैट माइनस ऑफ k इज नथिंग बट mod k is positive. In this case we can apply above theorem to get GCD of Ka Kb. Now in our case k is negative, so it is minus Ka minus Kb का GCD. Minus Ka minus k can be replaced by mod k using this relation. GCD of mod a mod k into a mod k into b. Now mod k is positive, so by theorem it can be taken outside. Mod k into GCD of ab. Let us take one illustration. Say GCD of 24 and 30. 24 and 30. इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है. अभी तो हमको 2 दिखता है दोनों में कॉमन, तो दिस इज, इसको ऐसा लिख देते हैं GCD ऑफ 2 into 12 2 into 15. तो 2 into GCD of 12 and 15 by theorem. by theorem. अब 12 और 15 किसी के मल्टीपल्स हैं क्या? तो 2 into GCD of, दोनों में कॉमन मल्टीपल होना चाहिए. तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा लिखा जा सकता है 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15. तो 3 कॉमन, 2 पहले से है, 2 into 3 GCD of 4 and 5 again by. So this is 6 into GCD of 4 and 5. 4 is a even number, 5 is prime number, GCD is 1. So answer is 6. So this is the application of the result. अभी जो हमने GCD फाइंड किया था, एग्जांपल जो सॉल्व किया था, उसको हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम से सक्सेसिव डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हमने GCD as लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर लिखा था. There is another way also to find GCD directly using lemma. Lemma says if A is equal to QB plus R, then GCD of AB is same as GCD of BR. Now this R can be written as A minus QB. मतलब क्या हो रहा है? GCD of AB is equal to GCD of B and number smaller than A. इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, तो नेचुरली A में से कुछ नंबर माइनस किया यूजिंग B, तो ये नंबर स्मॉल होते चले जाएगा. तो ये लेमा की डायरेक्ट हेल्प से सेम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है देखिए. Therefore GCD of 1769, problem was 1769 and 2378 is equal to GCD of, स्मॉलर नंबर को रहने देंगे 1769, और ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है. तो लीनियर कॉम्बिनेशन है जो हमको कुछ नंबर प्रोवाइड करे, रिमाइंडर प्रोवाइड करे. तो ये दोनों से रिमाइंडर कैसे मिलेगा ये देखना. तो रिमाइंडर, फर्स्ट रिमाइंडर इज 609, तो इट कैन बी रिटन एज 2378 minus 1 times 1769 by 1, इक्वेशन 1 है ना. इतने डिवीजन तो करने होंगे. यहां से दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इस पैटर्न में लिखा. Now this is nothing but GCD of 1769 and ये करने के बाद ये है क्या 609. अब बिगर नंबर को फिर एक्सप्रेस करते हैं स्मॉलर नंबर में. GCD of, तो ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इसको छोटा बनाने के लिए यूज करेंगे. तो वो कैसे यूज होगा देखो, 1769 minus 2 times 609 अपनी जगह
ये कहां से लिख रहे हैं? ये इक्वेशन 2 को देखते हुए बाय 2, ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, ये बन गया GCD ऑफ दिस इज नथिंग बट 551 एंड दिस इज 609। यहां एक्चुअली मेंशन करना चाहिए दिस इज बाय 2, दिस इज बाय, ये दिस रिलेशन गिव्स 609 बाय 1। ये तो ट्रायल और एरर करके लीनियर कॉम्बिनेशन अपने मन से नहीं ला सकेंगे, ये डिवीजन करने के बाद ये इक्वेशन की हेल्प से ही हम ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पाएंगे, एंड व्हिच इज इक्वल टू 609। यहां से लिखना है नाउ। अब बिगर नंबर को छोटा करते हैं, GCD ऑफ 551 तो है लेते हैं, दिस 609 कैन बी रिटन एज, इसको छोटा करना है 609 minus 1 times 551, this is by lemma, GCD of AB is same as GCD of B and B minus QA, बिगर नंबर को रिड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं। नाउ दिस इज GCD of 551 and it will give 58 by 3, it is equal to, अब बिगर नंबर को फिर रिड्यूस करते हैं, GCD ऑफ, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन से 551 minus 9 times 58 and this is 58, this is by lemma and it is equal to GCD of 29 58, ये आ गया by 4, 29 और 58 में GCD of 29 and this is 2 into 29, तो कॉमन इज 29, अभी हमने थ्योरम प्रूव किया 29 into GCD of 1 2, 1 और 2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1, so it is 29, so therefore GCD of 1769 2378 is equal to 29। यदि रिमाइंडर की लैंग्वेज में बात ना करें, ऐसा ही लेमा को यदि अप्लाई करते जाएं तो हमको GCD मिल सकता है, लेकिन ये हमको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने के लिए जो हमने किया था उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिडियन एल्गोरिथम। इसके साथ यूक्लिडियन एल्गोरिथम पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहां पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।